راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، دنیا میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے۔ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ابھی میں گزشتہ دنوں دبئی کی تصویریں دیکھ رہا تھا اور میں حیران ہو گیا کہ میں خود بھی دبئی گیا ہوں اور کئی مرتبہ گیا ہوں، لیکن اب کافی سالوں سے نہیں گیا۔ تو میں سوچتا تھا کہ کیا یہ وہی دبئی ہے؟ ہر ایک دن بعد نئی تبدیلی، ہر 6 ماہ بعد نئی تبدیلی، اس طرح سے ملک جو ہیں وہ ترقی پر ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ دوسرے ممالک کو بھی آپ لے لیجئے، ہم سعودی عربیہ ہی کو لے لیں تو ان کا جو ویژن ہے شہزادہ محمد بن سلمان کا کہ ہم نے کس طرح سے سعودی عربیہ کو ہم نے ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے سعودی عرب کو مغرب سے زیادہ اوپر لے کر جانا ہے۔ میں کہتا ہوں کمال کی بات ہے، ٹیکنالوجی میں، علم میں، تحقیقات میں، اور دل خوش ہوتا ہے جب اس طرح سے سب ترقی کرتے ہیں اور پھر ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے کہ کاش ہمارا ملک پاکستان بھی اسی طرح سے ترقی کرے۔ اس بات سے آپ سبھی اتفاق کریں گے کہ یہاں پر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہاں کمی ہے تو صرف اپرچونٹیز کی کمی ہے۔ جب ہم ٹیلنٹڈ لوگوں کو اچھا میدان دیں گے، اچھا ماحول دیں گے، تب وہ نئی نئی ایجادات کریں گے، ورنہ پاکستانی دنیا میں کسی میدان میں پیچھے نہیں ہے۔ ہاں اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہیے کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ بھی اپنے محدود وسائل کے باعث چاند پر قدم رکھ چکا ہے اور ہمیں خدا نے ہر طرح کی دولت سے نوازا ہوا ہے، اچھے دماغ اور اچھے لوگ، قابل لوگ۔ خدا کرے ہم بھی محنت کریں اور دنیا کی دوڑ میں ہم سب سے آگے نکلیں۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ خداوند یسوع المسیح کا انجیلی بیان، عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شیطیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شیطیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شیطیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ تلاوت کلام پاک ہم سن رہے تھے، اسی کے ساتھ ہم سنتے ہیں حمدیہ گیت۔ اپنی راہ کی حفاظت کروں گا، مجھ سے نہ ہو قصور زباں کا، مجھ سے نہ ہو قصور زباں کا، اپنی راہ کی حفاظت کروں گا، مجھ سے نہ ہو قصور زباں کا، مجھ سے نہ ہو قصور زباں کا۔ جب کسی بدل کو میں دیکھ پاؤں، جب کسی بدل کو میں دیکھ پاؤں، اپنے منہ کو لگام چڑھاؤں، اپنے منہ کو لگام چڑھاؤں،
जुबां का, मुझसे ना हो कुसूर जुबां का। बता दे ऐ खुदावंद मुझे ये बता दे, अपनी राह की हिफाजत करूँगा, मुझसे ना हो कुसूर जुबां का, मुझसे ना हो कुसूर जुबां का। प्रोग्राम में आप खत लिखेंगे इस पते पर, प्रोग्राम राहे जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे आप इस नंबर पे 0305 33 77 310 यानी 0305 3377 310। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है और पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। हम मुंतजिर रहेंगे जनाब आपकी तरफ से फीडबैक के। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुदरत के करिश्मे। सामईन, हम में से हर एक का हर रोज मिट्टी से वास्ता पड़ता है। यूं तो हम इसे गंदगी तस्वुर करते हैं और जल्द अज जल्द झाड़ देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये मिट्टी कुदरत का किस कदर फायदेमंद और हैरत अंगेज तोहफा है? और मिट्टी की इससे बढ़कर अहमियत और क्या हो सकती है कि खुद हम इंसान भी इसी मिट्टी से बने हुए हैं। इस सादा सी मिट्टी से हमारा इस कदर पेचीदा जिस्मानी निजाम मुरत्तब है, लेकिन हम इंसानों के अलावा दीगर तमाम हयातियात और माहौलियाती निजाम को कायम रखने में भी मिट्टी का बहुत अहम किरदार है। वो कैसे? आइए इस सब के बारे में जानते हैं कुदरत के करिश्मे में। सामईन, मिट्टी मादनियात और चट्टानों के हिस्सों का मुरक्कब है। अब तक मिट्टी की बहुत सी किस्में दरियाफ्त हो चुकी हैं, जिनकी चट्टानों और भुरभुरी मादनियात के तनासुब से दर्जा बंदी की गई है, क्योंकि मिट्टी को अपने माहौल और मिरास की अमीन समझा जाता है। हम जानते हैं कि मौजूदा दौर की निस्बत कदीम जमानों में साइंसी शऊर नहीं था, जिसकी एक बुनियादी वजह वसाइल की कमी भी थी। लेकिन 1774 से जर्मनी के शहर मरेबर्ग की यूनिवर्सिटी में पहले तदरीसी अमल का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में 1966 में बैनुल अक़वामी अर्जियाती कीमियाई रिपोर्ट में मिट्टी के हवाले से कई अहम इंकशाफात हुए, जिसमें ये शवाहद पेश किए गए कि नबातात बराह रास्त मिट्टी से अपनी गजाइयत हासिल करते हैं, जो जानवरों से होते हुए इंसानी जिस्म तक पहुंचते हैं। जमीन पर रहने वाले और फजा में उड़ने वाले तमाम तर जानदार जब मर जाते हैं तो उनके जिस्म मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। इस मिट्टी में खास किस्म के जरसूमे मौजूद होते हैं, जो इन लाशों को तोड़ते फोड़ते हैं। इनकी इजसाम में मौजूद तमाम तर कीमियाई इज्जा को पेचीदा हालत से सादा तरीन हालत में तहलील कर देते हैं और फिर इन्हीं से अपनी खुराक हासिल करते हैं। तोड़फोड़ का ये अमल जहाँ इन जरसूमों के लिए इंतहाई मददगार है और इनकी खुराक का जरिया है, वहीं पर ये तमाम कुराए अर्ज पर जिंदगी के निजाम को भी यकीनी बनाता है। ये जिंदगी के साइकिल को बरकरार रखे हुए है। वो इस तरह से कि सादा तरीन हालत में तहलील शुदा इन अज्जा को पौधे अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अफजाइश पाते हैं और इन्हीं पौधों को हम इंसान और दीगर तमाम तर हेट्रोट्रोफ जानदार, यानी कि वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इस्तेमाल करते हैं। यूं इस मिट्टी में मौजूद ये इज्जा
जरसूमों, पौधों और दीगर तमाम जानदारों की खुराक का हिस्सा बनते हैं और एक चेन की सूरत में एक जानदार से दूसरे जानदार तक बतदरीज मुंतकिल होते रहते हैं। लेकिन सामईन, हजारों सालों से जारी रहने वाली इंसानी सरगर्मियों ने दुनिया भर में मिट्टी को आलूदा कर दिया है। 50,000 से 1 लाख तक सनती केमिकल्स अब तक तजारती पैमाने पर तैयार हो रहे हैं, जिनमें 2030 तक 3.4% सालाना इजाफे की तवक्को है। फैलती हुई शहरी आबादियों का 80% वेस्ट रिसाइकल नहीं किया जा रहा, जो लैंडफिल्स में जज्ब हो जाता है और हमारी मिट्टी को आलूदा करता है। मिट्टी की आलूदगी की वजह से कानकुनी वाले इलाकों में ज़राई पैदावारी सलाहियत भी कदरे मुतासिर होती है। जब बारिश और सैलाब का पानी किसी थोड़ ज़्यादा जमीन से गुजरता है तो ये पानी जिस जगह भी ठहरता है वहाँ भी सेम और थोड़ का मसला पैदा हो जाता है। अक्सर औकात सैलाब का पानी जरखेज मिट्टी की तहों को अपने साथ बहा ले जाता है, जबकि 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में 1000 साल तक का अरसा दरकार होता है। आलमी इदारा खुराक व ज़राअत के मुताबिक हर साल तकरीबन 50,000 मुरब्बा किलोमीटर मिट्टी खोदी जाती है और इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि एक अंदाजे के मुताबिक हमारे पास मौजूद सतह जमीन पर मिट्टी की तह सिर्फ 60 साल के लिए बाकी रह गई है। FAO के मुताबिक दुनिया भर में हर मिनट में तकरीबन 17 हेक्टेयर के मुसावी मिट्टी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के नीचे कैद हो जाती है और एक अंदाजे के मुताबिक हर साल कटाव की वजह से 35 बिलियन टन मिट्टी जाया हो जाती है। पाकिस्तान में 50% मिट्टी का नुकसान मानसून के मौसम में होता है, लेकिन अगर इस मिट्टी को मौसर अंदाज में मुनज़्ज़म किया जाए तो फजा से कार्बन डाइऑक्साइड की कशीद के जरिए मुज़र मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला किया जा सकता है, जो कि माहौल को डीकार्बोनाइज करके और माहौल में ग्रीन हाउस गैसों के इखराज को कम करके मौसमियाती तब्दीलियों को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। क्योंकि मिट्टी कार्बन को इसकी इंतहाई मुस्तहकिम शक्लों में दहाइयों से लेकर हजारों सालों तक जखीरा कर सकती है। इसी वजह से जमीन में पौधों और माहौल दोनों से कहीं ज्यादा नामियाती कार्बन मौजूद है। जमीन पर कुदरती तौर पर 92 कीमियाई अनासर पाए जाते हैं। इनमें से 18 पौधों के लिए बहुत जरूरी हैं, जिनमें से 15 की फराहमी मिट्टी से होती है। मिट्टी न सिर्फ पौधों और फसलों की मदद करती है, बल्कि आबोहवा के असरात को बेहतर बनाती है और आबी धारों के वजूद की हमायत करती है, क्योंकि मिट्टी बहते हुए पानी की रफ्तार का तयन करती है। मिट्टी मुर्दा नबातात और हैवानात को ठिकाने लगाने का काम करती है। कुराए अर्ज के इर्द गिर्द के माहौल में हवा को खला से जुदा करने का काम करती है। इसके अलावा मिट्टी जानवरों, हशरातुल अर्ज, कीड़ों और जरसूमों की रिहाइश का भी जरिया है। सामईन, मिट्टी इस दुनिया का सबसे कदीम तामीराती जुज़्व है और इस ताल्लुक से कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ। और इंसान के अंजाम के हवाले से भी मूसा नबी बयान करते हैं कि खुदा ताला इंसान को फिर से खाक में मिला देता है और फरमाता है कि ए बनी आदम लौट आओ। तो जब हम इंसान मिट्टी ही से बने हैं और हमने वापस मिट्टी ही में लौट कर जाना है, तो हमारे लिए किस कदर लाजिम है कि हम इस मिट्टी की कदर करें। हम भी इसी मिट्टी से लिए गए हैं और इस मिट्टी की हमें कद्र करनी है। पाकिस्तान की मिट्टी सोना है। इसमें फसलें भी कमाल होती हैं, इसमें फल भी कमाल होते हैं। ये हर तरह से जबरदस्त है, लेकिन पैगाम ये है जनाब कि आइए हम इस मिट्टी को संभाल कर रखें, इसे कंक्रीट में न बदलें। तो आइए जनाब, अभी हम शामिल करते हैं आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। रेहान मुस्तफा साहिब, जिनका ताल्लुक भावल नगर से है, लिखते हैं, प्यारी बाजी उज़्मा यूनुस साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम सुना, हमेशा की तरह अच्छी बातें की। प्रोग्राम में तिलावत कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत सुना, बड़ी बरकतें मिली। प्रोग्राम में पता बताया गया और फिर लिसनर्स के मैसेजेस और खुतूत शामिल थे, जिसमें पहला मैसेज सफदर शाह का था। सुनकर बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया जनाब। अली रजा साहिब, जिनका ताल्लुक भी भावल नगर से है, लिखते हैं, जनाब जोशुआ बशीर साहिब, आदाब अर्ज़। प्रोग्राम में पहली बार लिख रहा हूँ।
अमजद खान ने मुझे बताया था। जी शुक्रिया जनाब, आपका भी और हमारे प्यारे भाई अमजद खान का भी। लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम सुनते थे, आज प्रोग्राम जोशुआ की खूबसूरत आवाज में सुना। प्रोग्राम के आगाज में एक वाकया सुनाया कि दोस्ती में अगर कोई गलती हो जाए तो फिर उस इंसान को मुआफ कर देना चाहिए। प्रोग्राम में कलाम मुकद्दस और फिर हमदिया गीत भी सुना, दिल को तसल्ली हुई और बड़ी बरकतें हासिल हुई। शुक्रिया। प्यारे भाई अली रजा आपको खुशामदीद भी कहते हैं और आपकी मोहब्बत, आपके प्यार के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। शहजाद अजीमी साहिब हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है। लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम, आज का प्रोग्राम मोहतरमा उज़्मा यूनुस की दिलकश आवाज में सुना, बहुत मजा आया। मोहतरमा उज़्मा ने शुरू में कुछ नसीहत आमूज बातें की, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। शुक्रिया प्यारे भाई शहजाद अजीमी। अमजद महमूद जख्मी साहिब, वाह रे वाह क्या बात है। स्वीट भैया अनवर जोसेफ साहिब, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम राह जिंदगी सुना, बहुत पसंद आया। इसमें कोई शक नहीं कि एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं। पहाड़, सरसब्ज़ो शादाब मैदान और मादनियात से माला माल है। जरूरत इस बात की है कि इसमें बसने वाले हर फर्द को इसकी बका और हिफाजत में अपना किरदार अदा करना होगा। गीत बहुत पसंद आया, कुदरत के करिश्मे में जानदारों के डीएनए पर तफसील से सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। रशीद नाज साहिब जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है और जनाब चेयरमैन हैं नाज लिसनर्स क्लब फैसलाबाद के। लिखते हैं मोहतरम जनाब ज़हूरुल हक साहिब, जोशुआ साहिब, अनवर जोसेफ साहिब, आकाश साहिब, आदिल मुश्ताक साहिब, उज़्मा यूनुस साहिबा और नदीम साहिब। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का प्रोग्राम जोशुआ जी की आवाज में सुना, बारिश के मौजू से प्रोग्राम को शुरू किया गया। इस प्रोग्राम को जोशुआ साहिब ने अपनी प्यारी आवाज में खूबसूरत लफ्जों से सजाया और बारिश जैसी नेमत पर रोशनी डाली। इसके बाद हमदिया गीत सुना, भाइयों के खुतूत शामिल प्रोग्राम किए गए, जिससे इस महफिल को गुलदस्ते की तरह सजाया गया। हर दोस्त का खत जोशुआ साहिब पढ़ते गए और फूल गुलदस्ते में जड़ते गए। प्रोग्राम का ये सिलसिला सारे प्रोग्राम का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। जोशुआ जी का अंदाजे बयां ऐसा है कि वक्त गुजरने में पता ही नहीं चलता है। हम दुआगो हैं कि आपकी आवाज हमेशा प्रोग्राम्स में चार चांद लगाती रहे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब हमें फोन कॉल्स भी मौसूल हुई हैं। मलिक अल्लाह बचाया खोखर साहिब ने मुजफ्फरगढ़ से कॉल की और उन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया और सारी टीम को सलाम कहा। गुलाम रसूल सियालवी साहिब ने चिन्योट से कॉल की, उन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया और टीम की मेहनत को खूब सराहा। मास्टर आरिफ मसीह जो कि अब इस्लामाबाद में मुकीम हैं, उन्होंने भी कॉल की, टीम को सलाम कहा और बहुत सारी दुआएं दी। शफाकत अली बाजवा साहिब जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, उन्होंने भी कॉल की और प्रोग्राम को खूब सराहा और ये कहा कि प्रोग्राम बहुत मालूमाती होते हैं। हाफिज नईम अहमद साहिब जिनका ताल्लुक झंग सिटी से है, उन्होंने भी इसी तरह से कॉल की और कहा कि प्रोग्राम अच्छे और मालूमाती हैं और सारी टीम को सलाम। सो जनाब ये थे आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। इन्हीं के साथ हम सुनेंगे एक अच्छा सा गीत। साकू ढोल मनावड़ा है, साकू यार मनावड़ा है, आवे फिर दादी लग जावे, आवे फिर दादी लग जावे, ऐहो खतरा जावड़ा है, ऐहो खतरा जावड़ा है,
भी तू बात हमने की है कि तहकीक का जो दायरा कार है वो सिर्फ सरकार तक ही नहीं रहना चाहिए, हम सब में तहकीक करने की आदत होनी चाहिए। हमारा दिमाग इस तरह का होना चाहिए कि हम छोटी से छोटी बात का भी खोज लगाया करें। हम जब आसमान को देखें, सितारों को देखें, तो जरूर हमारे दिमाग में बहुत कुछ आना चाहिए। हम जब दरख्तों को देखें, परिंदों को देखें, पहाड़ों को देखें, दरियाओं को देखें, तो जरूर हम उसकी तह तक जाएं, सोचें। खुदा पसंद करता है ऐसे दिलों को, ऐसे दिमागों को जो तहकीक करते हैं। असल में ये चीजें जो हैं वो हमें खुदा की जात को समझने का मौका देती हैं। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि हर तहकीक का इख्तिताम जो है वो रब ताला की जात पर जाकर होता है, और फिर जब हम उसकी हम्द करते हैं तो उसका मजा कुछ और है, उसकी बरकत कुछ और है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सिलसिला है हादसात से बचाओ। आइए सुनते हैं। प्रोग्राम हादसात से बचाव के साथ मैं हूं आपका मेजबान आकाश, और आज भी हमारे साथ माहिराना राय के लिए मौजूद हैं सैफुल कहार साहब, जो चेयरमैन ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी कमेटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फैसलाबाद हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने सांस की बहाली और दिल के रुकने के मुतालिक बात की थी, तो जरा बताइए कि अगर हम किसी की सांस बहाल कर लें तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना कितना जरूरी है? जी बहुत जरूरी है ये, क्योंकि हमने उसे सिर्फ इब्तदाई तबी इमदाद दी है, हमने उसका इलाज शुरू नहीं किया, हमने सिर्फ उसको मौत के मुंह से बचाया है और उसे डॉक्टर तक पहुंचने का एक टाइम दिया है। तो जब डॉक्टर के पास उसका जाना इंतहाई जरूरी है। अक्सर ऐसे होता है कि कोई जहरीली चीज खा लेते हैं, जब उसको दूध पिला दिया, पानी पिला दिया, वो आर्जी तौर पर ठीक हो गया तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। ऐसी बात नहीं है, मुमकिन है उसके अंदर बहुत से ऐसे असरात, उसके असाब का खिंचाव, उसकी बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, लिहाजा डॉक्टर के पास जाना इंतहाई जरूरी है। अगर कोई गहरे पानी में गिर जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी ये बात बताऊं कि डूबते शख्स को बचाने का तरीकाकार के लिए एक पूरी साइंस है। क्योंकि जिस वक्त कोई आदमी डूब रहा होता है ना, तो एक आधा गोता आने के बाद उसके हवास जो है ना वो खत्म हो जाते हैं, और अब उसको सिर्फ, जैसे वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, वो कोई ऐसी चीज ढूंढता है जो उसके हाथ में आए और उसको नीचे करके वो खुद बाहर निकल सके। लिहाजा अगर आप उसको सामने से बचाने जाएंगे तो वो आपके बाल पकड़ लेगा, आपके सर को पकड़ सकता है, बाजुओं को पकड़ सकता है, और वो दोनों शख्स जो हैं वो डूब जाएंगे। लिहाजा डूबते को बचाने के लिए हमेशा उसको थोड़ा सा यानी कि रिलैक्स होने दें, और फिर बैक साइड से जाकर उसको धक्का मारकर पानी से बाहर निकालने की कोशिश करें, या उसकी जानब कोई कपड़ा, कोई रस्सी, कोई चीज फेंके जिसको वो जोर से पकड़ ले और आप उसको खींचकर बाहर ले आए, उसके खुद करीब नहीं जाना। अच्छा, ये भी बताइए कि पानी से निकालने के बाद मरीज को किस पोजीशन में लटाना चाहिए? देखिए, इसमें पहले ये होता था कि उसे हम उल्टा लटाकर उसकी कमर के ऊपर वजन डालते थे ताकि उसके जो है वो जिस्म से पानी निकल जाए। बेसिकली पानी दो जगहों पे जाता है, एक तो वो पहले शुरू में हमारे लंग्स में जाता है, हमारे सांस के जरिए अंदर चला जाता है, और अगर वो ज्यादा देर पानी में पड़ा रहा है तो फिर उसके पेट में भर जाता है। पेट का पानी जो है वो निकालना सेकंड प्रोसेस है, सबसे पहले हम उसके लंग्स में निकालेंगे ताकि उसकी सांस बहाल की जा सके। लेकिन अब जो सीपीआर मेथड है, जो मैंने आपको बताया था, कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिटेशन, उसमें उसे सीधा लटाया जाएगा, और सीधा लटाने के बाद अगर तो वो नॉर्मल सांस रुका है तो उसका मुंह बिल्कुल सीधा रखेंगे, लेकिन अगर वो पानी में डूबा है तो उसका मुंह थोड़ा सा साइड पे करेंगे और ऊपर से पुश करेंगे, उसके सीने को जोर जोर से पुश करेंगे ताकि वो पानी उसका ऑटोमेटिकली तरीके से बाहर निकल जाएगा। और अगर इस सारे अमल में मरीज के मुंह में कोई चीज फंस जाए तो उसे निकालने का क्या तरीकाकार होना चाहिए? पिछले प्रोग्राम में बताया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पानी है, आमतौर पे हमें पहले पता खुद ही लग जाता है कि मुंह में चीज फंसी कि नहीं। अगर तो वो किसी स्विमिंग पूल के अंदर गिरा है तो आमतौर पे साफ पानी होता है। अगर वो किसी नहर के अंदर गिरा है तो वहां पर कोई मछली उसके अंदर जा सकती है, उसके अलावा कोई जड़ें, जो पौधे वगैरह या कोई पत्ते या कोई ऐसी चीज उसके अंदर जा सकती है। क्योंकि हम आम तौर पर बहसियत कौम अभी हमारी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई और हम नहर के अंदर बहुत सारा गंद बला फेंक देते हैं, तो वो भी उसके मुंह के अंदर जा सकता है। लिहाजा उसके लिए अगर वो पानी में डूबा है तो पानी की हैसियत देखकर फौरी तौर पर पहले उसके गले को साफ करने की कोशिश करें। उसके लिए मैंने बताया, आप कोई उसके मुंह के अंदर कोई लकड़ी को चीज रख के, ताकि वो दांत ना दबा दे, क्योंकि अगर उसने दांत दबा दिए तो आपका हाथ बुरी तरह जख्मी हो सकता है। लिहाजा उसके मुंह से कोई ना कोई चीज पकड़ के निकाल लें, हाथ से निकाल लें, कोई चिमटी, कोई चीज, पहले तो देखें ना, उसके मुंह को देखेंगे, अगर कोई चीज है तो वो निकाल दें। अच्छा, ये भी बताइए कि कोरोना वायरस के पेश नजर क्या सीपीआर देना मुनासिब है? जी बिल्कुल, सीपीआर हमारी मजबूरी है ना। अगर किसी का सांस रुक गया तो हमने उसको बहाली तो करनी है। अगर हमें कोरोना का डर है तो उसका बेसिकली हमें पता ऐसे चल जाता है कि उसका फ्लू साथ निकल रहा होता है, खांसी की वजह से हो सकता है, तो ऐसी सूरत में हम अपना मास्क ही उतार के या उसका मास्क लेकर या कोई कपड़ा लेकर ऊपर रखकर हम उसको सीपीआर दे सकते हैं।
کیا سی پی آر دینے کی پریکٹس صحت مند شخص پر کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ہم سکھانے کے لیے کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم اس کا کیونکہ بیٹھنے کا طریقہ، دبانے کا طریقہ، لیکن حقیقت میں ایسا زور لگا کے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بعض اوقات اس کے اوپر نیگیٹو اثرات پڑ سکتے ہیں، اس کے مسلز کے اوپر پریشر آ سکتا ہے۔ یہ صرف تب ہی کریں اگر کوئی مجبوری ہے بہت زیادہ تو۔ اچھا، اگر کوئی دمہ یا ٹی بی کا مریض ہو اور اس کا سانس رک جائے تو کیا اسے سی پی آر دینا مناسب ہے؟ دیکھیں اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ جو وہ لائف کس والا میتھڈ تھا نا، جو منہ کے ساتھ منہ جوڑ کے، وہ نہ کریں۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں اول تو اس کا سانس بعض اوقات کسی عارضی پرابلم کی وجہ سے رک رہا ہوتا ہے، سلو ہو گیا ہوتا ہے لیکن رکا نہیں ہوتا، اس کو آپ یہ طریقہ نہ اپنائیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ بالکل ہی سانس بند ہو گیا تو آپ پش والا طریقہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے منہ کے ساتھ منہ نہ جوڑیں ورنہ آپ کو بھی وہ بیماری ہو سکتی ہے۔ آپ نے یہ بتایا کہ سی پی آر میں ایک خاص تعداد میں سینے کو دبایا جاتا ہے، کیا یہ تعداد فائنل ہے یا اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے؟ یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ 45 سے 50 پش تک آپ اس کو دبائیں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو جسٹ ایک مقدار، ایک فرض کی گئی ہے۔ آپ مریض کی حالت کے حساب سے یہ لگاتار 100 بار بھی کر سکتے ہیں، 10 بار بھی کر سکتے ہیں، بعض اوقات 2-3 بار کرنے سے اس کی سانس بحال ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی فائنل نہیں ہے، یہ جسٹ ایک فرضی ویلیو رکھی گئی ہے۔ بہت شکریہ سیف صاحب، آپ نے بہت ہی مفید باتیں سی پی آر کے تعلق سے بتائیں، اور اگر کوئی ڈوب جائے یا اس کا سانس رک جائے تو اس کی سانس کی بحالی کے لیے جو اقدامات آپ نے بتائے وہ بہت ہی مفید ہیں، اور یقیناً ہمارے سننے والوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سنا ہم نے سلسلہ حادثات سے بچاؤ، یقیناً ہمیں ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے۔ امید ہے پروگرام بہت اچھا رہا، ہمارا وقت بڑا اچھا گزرا۔ آئیے دعا کریں۔ خدا قادر مطلق، میں تیری منت کرتا ہوں ہمارے سبھی لسنرز کو بڑی برکت دے، ہم سب کو قوت بخش دے کہ ہم اس معاشرے میں اچھے سے رہیں، تیرا ذکر کرتے رہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، منت ہے اس کی بیماری جاتی رہے، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی جاتی رہے، بے روزگار کو روزگار مل جائے، گھروں میں سے جھگڑے ختم ہو جائیں اور سبھی خوش باش زندگی گزاریں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا جی، اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جاشوا کو۔ خدا حافظ۔